Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are all preparing for SBI PO and moving ahead. So today you will attempt the 11th mock test from 2020 series of the mock test which I suggested you. Link is available in description box as well as pinned comment. I am very happy that the candidates, those are following this mock test, they are showing gradual improvement day by day. And some of them are sharing their performance with me. I am posting their performance in community column of our YouTube channel. It indeed gives me pleasure that I have recommended a good mock test to you, and even the candidates, those who are appearing for such examination 2 times, 3 times, for 3 years, 4 years, now they are showing sign of improvement. This is the strength of good mock test. A good mock test can identify your weakness effectively, can tell you your weak areas, and then you can improve. Second advantage of good mock test is it is of examination level. It may appear to be tough, but this toughness makes you strong. And once you are strong, you can get through the real exam, because real challenge comes in the real exam. So at home, if we are prepared and geared to take the tough call, we are successful. So after attempting this mock test, you could jot down the weak areas. First, you will see the solution, that analysis. Now this weak area becomes your syllabus for next 3 days. Say you are weak in English for certain topics, read grammar book of respective topics. If you are weak in quant, type the title plus NCERT book on Google search, find the material and prepare. And in reasoning, if you are weak in specific type of reasoning questions, type reasoning plus good book in Google and search the material and prepare. Second important thing is preparation of current affair. I have suggested you a very good PDF for current affairs. Link is available in description box as well as comment column. I am very happy that you are appreciating the quality of this material time and again. So those people, those who have not subscribed till now, they can subscribe it today. Even mock test, if you have not subscribed till now, subscribe it for annual plan. You will get validity up to next July. So this is very good mock test. You will be having advantage. Then I suggested you to watch videos from my playlist. 192 video playlist is available free of cost. Watch 5-10 videos daily. It will improve your skills. You will be able to clear the examination with flying colors. Along with that, daily developments in the field of banking, finance, economics are equally important. We have seen in past number of questions comes from these areas. So if we are up to date on this, we can score high in general awareness. For your benefit, I am posting one video on daily basis. Now I have made a playlist also. There are two playlists. One is July 2020 and one is July 20 plus previous videos also. So from there also you can watch 5 videos daily. It will cover the previous day's news also. So make a habit of attempting good mock test. I have suggested you good mock test. Watch this. Attempt this, subscribe this. Second, I have recommended you good PDF. Subscribe it, use it. Third is playlist on banking and financial awareness. Watch 5 to 10 videos daily. Then daily news on finance, economics and banking. Watch 5 to 10 videos. And then you should focus on improving your concepts. So whatever is your weak areas, pinpoint those weak areas and try to clear the conceptual things. So reading from basic textbooks will help you to have more and more clarity on concepts. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI PO की हम तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे. जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम और लोगों से आगे होंगे.
अब हमने 11वां मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 2020 सीरीज से। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिया। मुझे बहुत खुशी आपके साथ शेयर करने में कि जिन भी लोगों ने ये मॉक टेस्ट लिया और इससे अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, अब वो दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं। वो मुझे कम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी भेज रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी भेज रहे हैं। इन टर्न मैं कम्युनिटी के अंदर उसको पोस्ट भी कर रहा हूँ इनकरेज करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है अपनी कमियों को ढूंढने के लिए। और जिन भी लोगों ने मेरा कहना माना, इसको इस्तेमाल किया, उनको फ़ायदा हुआ ही हुआ है। आपने अगर अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बेहतरीन लगेगा और फ़ायदा होगा। दूसरा क्या है, ये मॉक टेस्ट का लेवल एग्ज़ाम लेवल का है। अब एग्ज़ाम लेवल का होने से कई बार हमें टफ भी लगता है, क्योंकि हर बार पैटर्न बदलता है, नए नए पैटर्न के हिसाब से ये भी बदलाव करते रहते हैं। तो हमें घर पे टफ लगता है तो हम अपनी कमियों को ढूंढ लेते हैं और जब हमने अपनी कमियां ढूंढ ली तो हम आसानी से उनको ओवरकम भी कर लेंगे। तो जो रियल एग्ज़ाम होगा वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। कई लोगों को लगता है कि सर टफ है, टफ जानबूझ के बनाया गया। टफनेस से ही आप मजबूत होंगे। अगर आसान चीज़ घर पे करके जाएंगे और वहाँ आसान पेपर नहीं आया तो आप धराशायी हो जाओगे। हम टफ बना के आपको भेजेंगे तभी आप इतने टफ कंपटीशन में आगे निकलेंगे। तो घर में अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर हमारे बम्पर नंबर आ गए और एग्ज़ाम में टफ एग्ज़ाम आ गया, फिर तो पछताएंगे ना। इसलिए इससे घबराना नहीं है, हमें अपनी कमियों को ढूंढना है, उसको ठीक करना है। तो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अब आपको सोल्यूशन देख लिया, फिर आपने एनालिसिस देख लिया। अब इसको देखने के बाद आपको पता लग गया मेरी ये कमजोरी है, इसको आपने डायरी में नोट कर लिया। अब इंग्लिश के अंदर वही रिस्पेक्टिव चैप्टर आप ग्रामर बुक का पढ़िए। क्वांट के लिए टॉपिक का नाम लिखो, एनसीईआरटी बुक लिखो, गूगल सर्च करो, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो। किसी को प्रॉफिट लॉस नहीं आता, किसी को मिक्सचर्स नहीं आता, किसी को कोई टॉपिक नहीं आता। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता सब कुछ आपको गूगल सर्च में एनसीईआरटी बुक्स में आसानी से मिल जाएगा। और जब हम उसको पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर जिस तरह की रीजनिंग आप नहीं कर पाई, प्लस गुड बुक लिखिए, आपको एक अच्छे बुक के अंदर मेथोडोलॉजी समझाने वाली किताबों पे ले जाएगा, जहां आपको समझ आएगा कंसेप्ट क्या है रीजनिंग का। फिर करंट अफेयर्स की तैयारी करनी निहायत जरूरी है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा पीडीएफ का लिंक दे दिया जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में है। इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही रिजनेबली प्राइस्ड है। इससे आपको क्या है, एक मटेरियल एक जगह मिल गया, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। कई बार हम करंट अफेयर के लिए इस सोर्स में भागते हैं, उस सोर्स में भागते हैं, इधर भागते हैं, उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। एक अच्छे सोर्स को जम के हम तैयारी कर लेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। कोई भी ऐसा सोर्स ले सकते हो जहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर अधिकतर क्वेश्चन आपके आ गए, आपकी नैया पार हो गई, तो अधिकतर क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। इसको आप जरूर ले लें। फिर मैंने आपको बैंकिंग की के लिए बहुत अच्छी 192 वीडियोस की प्लेलिस्ट दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया। ऐसी वीडियोस आप कोई भी लेंगे 1000-2000 रुपये से कम कॉस्ट नहीं करेंगे आपको। पर मेरी अपनी वीडियोस है, मैं चार्ज नहीं करता हूँ, मेरा सारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो दूसरों के प्रोडक्ट है उसी की आपको प्राइस देनी पड़ती है, और वो भी क्योंकि बेहतरीन और रिजनेबली प्राइस है, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। तो जो मेरी वीडियोस फ्री हैं उनको देखिए, 5 से 10 वीडियोस रोज देखिए, बहुत मददगार साबित होंगी। 2370 से अधिक लोग डेली 5 से 10 वीडियोस देख रहे हैं और लगातार मुझे अप्रिसिएशन भेज रहे हैं। सर इतनी शानदार चीज़ आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, आप चाहो तो इसकी प्राइस भी ले सकते हो, बट मैं नहीं लूँगा इसकी प्राइस। ये मेरा गिफ्ट है आपको, आप पढ़िए, बैंकर बनिए, मेरे को इसी में खुशी है। फिर जो करंट न्यूज़ आ रही है, अब उसको कैसे अपडेट करें। डेली एक वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए मॉर्निंग के अंदर, आप उसको देख रहे होंगे। कुछ लोगों की मिस हो गई होंगी पुरानी वीडियोस, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। एक जुलाई 2020 की प्लेलिस्ट है और एक जुलाई और पुराने वीडियोस मिक्स करके प्लेलिस्ट है। इसमें से 5 वीडियो रोज़ देख लीजिए, पुराने सारी न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी। अब पुरानी न्यूज़ भी कवर हो गई, करंट न्यूज़ भी आप कवर करते जाते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपने बैंकिंग की कर ली, साथ ही साथ करंट अफेयर की आपने तैयारी कर ली, और तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, अच्छा मॉक टेस्ट यूज़ कर लिया।
तो अब आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हो नौकरी पाने के। ये सारे एसेंशियल हैं एग्ज़ाम को पास करने के, और एग्ज़ाम आपका पास कब होगा? जब सारे एसेंशियल आपके पास हैं। तो मेरे कहे अनुसार आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, पीडीएफ का सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियोस को देख लीजिए और बेसिक टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।